In last video, we have learned function. Now we do some examples of exercise 1.2 question related to function. The fourth question of your exercise 1.2 Navbodh, है ना? What is given? Given function is f is a function from R to R. That means domain of function is real number and codomain also real number, and function fx is modulus function, that is mod x. We know the definition of mod x. Modulus function, what is the definition of modulus function? Yes, it gain value positive x if x is greater than equal to 0, and it get negative x if x is less than 0. For x equal 0, it is 0. If we put x equal 0, we get mod 0. Mod 0 is 0 only, right? So first of all, है ना, आपको ये देखना है कि हमको जो फंक्शन है वो सेट कौन सा है. तो सेट कौन सा है भाई? आपका रियल नंबर है दोनों सेट. और रियल नंबर मतलब आप जानते ही हो, है ना, इट कंटेन्स एवरी टाइप ऑफ नंबर, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, रूट नंबर्स, ऑल नंबर्स belongs to the real number except imaginary numbers. That means we have -1, +1, you have 1.5, 1.2 also, है ना, √2, √3, 3, similarly -1.5, -2 and so on up to infinite. Again second set also real number, that means all these number also belonging to second set also. So real number means this, containing every type of number, right? Now see mod x. So see here only, है ना, you know that the mod of -1 is again 1 and mod of 1 also 1. Mod -1, value of mod -1, yes, 1, और mod 1, right? का मतलब ये हुआ कि इन दोनों नंबरों की इमेज एक ही है. तो अब आप मेरे को बता दो ये है 1 1, कौन सा है फिर? तो यही एग्जाम्पल से हम बता देंगे. फिर अब एक इसमें एक दो और दिख रहा होगा आपको कि जो कोडोमेन के जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं ये किसी की प्री इमेज नहीं होंगे. देखो किसी की इमेज नहीं होंगे, चेक कर लो भाई, नेगेटिव आंसर आएगा ही नहीं ना मॉडुलस फंक्शन का. तो आप -1 ले रहे हैं तो वो भी +1 में जा रहा है, -1.5 लोगे तो वो भी +1.5 में इमेज जाएगी उसकी, 0 की इमेज 0 में जाएगी. नेगेटिव नंबर किसी की इमेज होंगे क्या? नहीं होंगे. इसका मतलब ऑल नेगेटिव नंबर क्या छूट रहे हैं? ब्लैंक छूट रहे हैं, खाली छूट रहे हैं, जो किसी की प्री इमेज नहीं है. का मतलब ये ऑन टू भी नहीं. दोनों के मिल गए एग्जाम्पल, केवल लिखना है हमको. तो यही दोनों हम लिख लेते हैं. क्या लिखेंगे हम? फॉर -1 and 1 यू कैन टेक अदर नंबर्स ऑल्सो, है ना. मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, आपको कोई और दूसरा लेना हो -2, 2 से लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. तो फॉर -1 and 1, -1, 1 belongs to first domain R. x की वैल्यू किससे उठाना चाहिए? डोमेन वाले सेट से. मतलब इनकी बात हो रही है अभी, है ना. ये जो मैं लेता हूं वो इनके लिए लेता हूं. f -1 की वैल्यू क्या आएगी? mod -1, दैट इज +1. f1 की वैल्यू कितनी आएगी? mod 1, दैट इज अगेन 1. So both are same, but -1 and 1 not equal to each other. So it is not a 1 function, it is a many one function. So because yes, f -1 equal f1
fx1 इज इक्वल टू fx2 तो है, बट वी नो दैट -1 डज नॉट इक्वल टू +1, मतलब x1 और x2 सेम नहीं है. दस व्हाट, दस fx इज नॉट 1 1. क्लियर? नाउ वी चेक ऑन टू. तो ऑन टू में भी कितने सारे नेगेटिव नंबर है, देखो ढेर सारे है, कोई भी एक उठा लो. किसके लिए लिख दूं, आप जो बोलोगे उसमें लिख दूंगा मैं. -2 के लिए लिख दूं तो हम बोलेंगे क्या, फॉर -2 बिलोंग्स टू कोडोमेन R. यहां किसकी बात कर रहा हूं मैं, हाँ इस वाले सेट की. तो -2 बिलोंग्स टू कोडोमेन R. देयर इज नो प्री इमेज इन डोमेन R. देयर इज नो प्री इमेज इन R. R कौन सा वाला R, डोमेन वाले सेट की में कोई प्री इमेज नहीं मिल रही है. Hence what? Thus what? Thus fx is not onto. So fx is neither 1 1 nor onto, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था. क्लियर है? यू कैन नोट इट. फैन ऑन कर दो पहले. Now we see question number 9. In question number 9 we have function natural number to natural number, n to n is there. That means you have two sets, natural number set. The function f is n to n, that means natural number to natural number, and we know that natural number starts from 1. These are also known as counting numbers, right? And the function given is fx is equal to x minus 1, है ना, for x greater than 0, x greater 2. Clear? Also given what? Given f1 is equal to f2, both are 1. That means when we take x is equal to 1, x is equal to 1 means domain, we get 1. That means 1 की इमेज 1 है. क्लियर? और x इज इक्वल टू 2 रखने पर भी कितना मिलता है, 1 ही मिलता है. रख के भी देख लो 1 ही मिलेगा. तो f2 की इमेज भी कैसी है, 2 की इमेज भी किस पर है, 1 पर ही है. राइट? नाउ फॉर x इज इक्वल, x इज ग्रेटर देन 2, मतलब 2 के बाद जब आप x की वैल्यू रखोगे यानी 3 से, तो वो इस फंक्शन में रख के निकालनी है. ये 2 वैल्यूज उसने मैपिंग करके बता दी है, मतलब हमको इन 2 को कंसीडर नहीं करना है बिकॉज इट इज गिवन. अब हम फंक्शन का चूज कहां से करेंगे, 3 से. 3 से इस फंक्शन से वैल्यू निकालेंगे. तो अब आप बताओ x इज इक्वल टू 3 पुट करोगे जब आप, तो 3 माइनस 1 2 आएगा, यानी मतलब 3 की इमेज किस पर मिलेगी, 2 पर, 4 की, 3 पर 5 की, 4 पर 6 की, 5 पर. इस तरीके से ये मैपिंग बस बढ़ती चली जाएगी. आप खुद देख सकते हो कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटेगा, सारे ऑक्यूपाइड हैं. देखिए है का मतलब क्या है भाई, ये 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है. मैनी 1 ऑन टू हो गया, ये दिख गया सब. अब केवल हमको इसको क्या करना है, लिखना बस है इसी के हिसाब से. तो बाय इक्वेशन सेकेंड, अब हम इक्वेशन सेकेंड का यूज कर लेंगे सीधे. बाय इक्वेशन सेकेंड वी हैव व्हाट,
f1 is equal to f2, but we know that 1 is not equal to 2. जो दो वैल्यूज हैं 1 and 2 वो है ना, तो बाय इक्वेशन सेकेंड से ही हमको मिल गया. दस व्हाट, दस f is not a 1-1 function. Clear? Now for x is greater than 2, the function f, that means each element of codomain having a pre-image in domain n है. इसका मतलब कोई भी ये ब्लैंक नहीं छूटेगा, तो हम इसी से भी लिख सकते हैं कि इट इज एन ऑन टू फंक्शन. क्लियर? और यू कैन टेक y इज इक्वल टू दिस और x फाइंड कर सकते हो. तो ऑन टू बताना है, ऑन टू बताना है तो हम कोई एग्जाम्पल ना लेके डेफिनेशन से भी प्रूव कर सकते हैं. ऑन टू बताना है कि है, हाँ, तो ऐसा भी लिख सकते हैं. बाय इक्वेशन फर्स्ट व्हाट, y इज इक्वल टू कितना, x माइनस 1. इक्वेशन नंबर 1, fx इज इक्वल टू x माइनस 1 मीन्स y इज इक्वल टू x. fx एंड y एक ही बात होती है, तो मैंने इसकी जगह पर y यूज कर लिया है, राइट. तो y इज इक्वल टू x माइनस 1, सो वी गेट x इज इक्वल टू वॉट, y प्लस 1. साइड चेंज. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3. नाउ वी फाइंड value of fx. If it comes is equal to y, that is fx is equal to y. fx means range and y means codomain. range और codomain अगर एक जैसे आ गए तो फिर फंक्शन कौन सा है, ऑन टू. नाउ पुट, तो f, what is the value of x, y plus 1. तो that is equal to एफ वाई प्लस 1 इधर से निकलेगा. रखो इसमें f, जैसे एफ एक्स ये है, अगर मैं बोलूं फाइंड f5 तो आप क्या करते, x के प्लेस में 5 पुट कर देते. नाउ आई एम सेइंग फाइंड एफ वाई प्लस 1, सो व्हाट यू डू, you put y plus 1 in place of x in equation number 1. So put this in place of x, y plus 1 minus 1 is same, plus 1 minus 1. तो क्या मिल गया भाई आपको, fx is equal to y. fx means range और y means कोडोमेन. दैट मीन्स रेंज और कोडोमेन एक ही है. रेंज और कोडोमेन एक ही है का मतलब क्या होता है कि सेकेंड सेट का कोई भी एलिमेंट ब्लैंक नहीं छूट रहा है, इसलिए ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा, ऑन टू. तो बिकॉज रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, दस एफ इज एन ऑन टू फंक्शन. क्लियर? This is our statement. Any doubt? Okay, you can. Now we see question number 10 or example number 11. Question number 10 or example number 11. The given function f is from natural number to natural number again. That means again we have two sets of counting numbers. That means start from 1. So your domain will start from 1 and codomain also start from 1 2 3 4 5 and so on. And f is defined such that it take value x plus 1 when x is odd number, and it takes x minus 1 when x is even number. Now this time the given function is multi-value function. These type of function are called multi-value function. We have studied previous year in continuity in 11th class, right?
So see, the value x can take even number. So if we choose two number from domain, those two numbers can be one even, one odd, both can be even numbers, or both can be odd numbers. That means there are three pairs possible for taking two numbers from domain. So we will consider all three conditions one by one. If any function is proven 1 1 in all three conditions, only then it will be 1 1 function, otherwise not. If we talk about not a 1 1 function, so if any one of three condition fails, then the function is not a 1 1 function. मतलब अगर आपको 1 1 प्रूव करना है तो तीनों कंडीशन फॉलो करना में 1 1 होना चाहिए, और 1 1 नहीं है अगर, तो कोई भी एक कंडीशन में अगर वो 1 1 नहीं है तो फिर नॉट अ 1 1 फंक्शन कहलाएगा। क्लियर हुआ? तो हम कितनी वैल्यूज, कितनी कंडीशन, कितने केस ले सकते हैं इसमें? 3 केसेस आर पॉसिबल। तो वन बाय वन हम इसको कंसीडर करते हैं। हम देखते हैं कि अगर हमने एक नंबर ऑड लिया और एक नंबर इवन लिया तो क्या ये 1 1 है कि नहीं है। तो हम बोलेंगे क्या, फॉर x1 and x2 belongs to domain n, where एक को इवन लेना है, सो सपोज x1 इज इवन एंड x2 इज एन ऑड नंबर। एक इवन और एक ऑड हमने लिया तो हमको क्या मिल रहा है देखते हैं हम, है ना। एंड इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, दोनों को इक्वल ले लिया, तो अगर हमको x1 बराबर x2 मिलता है तो 1 1 हो जाएगा, है ना। देखते हैं मिलता है कि नहीं। तो fx1 की वैल्यू, तो x1 कैसी, कौन सा फंक्शन है, कौन सी वैल्यू है, इवन, इवन नंबर का फंक्शन ये वाला है आपका, देखो। तो x1 की वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x1 माइनस 1। fx2, x2 कौन सी वैल्यू कंसीडर की है हमने, ऑड नंबर, तो ऑड का फंक्शन कौन सा है, ये वाला, तो x2 हम इसमें रखेंगे तो x2 प्लस 1 मिलेगा। इसका साइड चेंज करें हम तो x1 माइनस x2 की वैल्यू हमको ये दे रहा है 2। मतलब इस स्टेटमेंट को समझिए आप, x1 कैसा नंबर है, इवन, x2 कैसा नंबर है, ऑड। एक इवन नंबर फॉर एग्जाम्पल 6 और दूसरा ऑड नंबर फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग सपोज 3, तो क्या इनका डिफरेंस कभी भी 2 यानी इवन नंबर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। एक इवन और एक ऑड का जब भी आप डिफरेंस निकालेंगे वो हमेशा ऑड नंबर ही होगा, इवन हो ही नहीं सकता। आप कोई भी पेयर लेके देख लो। का मतलब ये हुआ कि जो हमने कंसीडर किया था कि x1 इवन और x2 ऑड, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब जो 3 कंडीशन ले रहे वाले थे हम, एक इवन एक ऑड, दोनों इवन दोनों ऑड, उनमें से ही फर्स्ट कंडीशन तो कैंसिल हो रही है। इस फंक्शन में एक नंबर इवन और एक नंबर ऑड हम ले ही नहीं सकते, ये मतलब होगा इसका। ये नहीं लिखेंगे हम कि नॉट अ 1 1 फंक्शन। दैट मीन्स वी विल नॉट कंसीडर दिस कंडीशन। विच कंडीशन, x1 इज इवन एंड x2 इज ऑड। मतलब आपको इस फंक्शन में एक इवन नंबर लेना और एक ऑड नंबर लेना अलाउ नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन इवन और ऑड की कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। वेरी क्लियर। सो व्हाट वी राइट, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, thus we will not consider
दिस कंडीशन, दिस कंडीशन जो है, ये जो कंडीशन है ये कंसीडरेशन के बाहर चली जाएगी, हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। अब कौन सी दो कंडीशन बची, या तो दोनों इवन नंबर हो सकते हैं या फिर दोनों ऑड नंबर हो सकते हैं। क्लियर? तो दोनों इवन नंबर हम लेके देखेंगे, उसमें भी 1 1 आना चाहिए और ऑड वाले में भी 1 1 आना चाहिए, तभी ये फंक्शन 1 1 होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक फेल हो गई तो फिर 1 1 नहीं कहलाएगा। बहुत अच्छे से समझ में आया आपको? चलिए अब हम आगे का देखते हैं, क्या सेकंड कंडीशन। नाउ केस, ये आप इसमें लिख सकते हो केस 1, तो और अच्छे से आपको ध्यान रहेगा। केस नंबर 1 हमने कंसीडर कर लिया, विच इज बियॉन्ड कंसीडरेशन, इसको हमको छोड़ना है। ठीक है? नाउ केस 2, केस सेकेंड, इफ x1, x2 बिलोंग्स टू n, कौन सा n? डोमेन, एंड x1, x2 बोथ आर इवन नंबर, दोनों हमने इवन नंबर ले रहे हैं। ठीक है? एंड इफ, फिर से चेक करो भाई, दोनों को बराबर ले लो, fx1 इज इक्वल टू fx2। तो अब x1 और x2 दोनों कैसे नंबर हैं? इवन नंबर। इवन नंबर का फंक्शन कौन सा है? ये वाला, नीचे वाला, राइट? तो इसमें वैल्यू रखेंगे हम, तो रखो fx1 कितना आएगा इधर से, ये fx है, तो fx1 कितना मिलेगा? x1 माइनस 1, एंड fx2 कितना मिलेगा? x2 माइनस 1, -1 to -1, देख लो x1 बराबर x2 मिल रहा है क्या? तो fx1 इज इक्वल टू fx2 हमने लिया, तो x1 इक्वल x2 मिल रहा है। इसका मतलब फंक्शन कैसा है? 1 1 है अभी। Thus f is a 1 1 function. Clear? Now case third. For x1, x2 belongs to domain n, where x1, x2 both are odd number. And if, now again take fx1 is equal to fx2. So function fx defined for odd number as x plus 1. So fx1 कितना आएगा इस बार? x1 plus 1, and fx2 x2 plus 1. Again you can see x1 is equal to x2 मिल रहा है आपको। इसका मतलब क्या? तो तीनों के एक केस कंसीडर नहीं हो रहा है और बाकी दोनों केसों में आपको कैसा मिला फंक्शन? 1 1 मिला। सो इट इज अ 1 1 फंक्शन फाइनल। क्लियर? तो f इज अ 1 1 फंक्शन। क्लियर? एंड व्हाट? ऑन टू भी चेक करना है, तो सेम दो केसेस में ऑन टू भी बताना पड़ेगा अपन को। ये वाला केस कंसीडर नहीं करना है, तो चेक कर लो भाई अगेन। व्हेन x इज इवन नंबर, देन बाय इक्वेशन 1, तो इवन नंबर का फंक्शन ये वाला है, तो y की वैल्यू होगी आपकी x माइनस 1, तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको? x माइनस 1 मिलेगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y प्लस 1 आएगी। तो अब हम निकालते हैं fx की वैल्यू। देन fx इज इक्वल टू कितना?
एफ वाई प्लस वन, एक्स की वैल्यू वाई प्लस वन। अब एफ वाई प्लस वन इससे निकालोगे, ये है इवन नंबर का फंक्शन। तो रखो भाई इसमें एक्स की जगह पर वाई प्लस वन, कितना आएगा वाई प्लस वन माइनस वन, आ गया वाई। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या मिल गई आपको, वाई मिल गई। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, ऑन टू है, राइट। अब ऑड के लिए भी चेक करेंगे, उसमें भी ऑन टू आना चाहिए, आ जाएगा तो ऑन टू हो गया दोनों में। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो ऑड के लिए ऑन टू चेक कर लोगे आप, होमवर्क।